Welcome Sweet Way Convener, Swami Sachi.
पवसु सोमधारय इन्द्राय पादमे सुतः सोमः पुराणो सहस्राधारोत्याभिः वायोरिन्द्रस्य निष्कृतं प्रणयिन्दो महेतन भूमिर्न विभ्रादर्शते अभिदेवामयास्याम इनुमन्दिस्वरं स्वायस्वामवजामयस्वतिं महामिन्द्रो महीवाः पावमानं वारं ब्रह्मा ये पठन्तिकीर्षिणः आता स्वागत गीत
ओम श्री गुरुभ्यो नमः श्री भवानी शंकराय नमः श्री मात्रे नमः आतां आमगेलो चातुर्मास कमिटीचो कन्वीनर जावन आशिल्लो कंडलर भवानी शंकर माम स्वाम हांकां आनी आशिल्ल्या पुराय जाणांक वेलकम करूंक हांव रिक्वेस्ट करता. ओम श्री गुरुभ्यो नमः श्री भवानी शंकराय नमः श्री उमामेश्वराय नमः श्री अनंतेश्वराय नमः श्री मात्रे नमः. It gives Ramkishore Mam and myself as a co-conveners of Kodiyal Chaturmas 2024 immense pleasure to extend a warm welcome to our Paramapuja Sadyojata Shankarashrama Swamiji Matadipati of Chitrapur Mutt and their retinue. It is our responsibility and assurance to our Swamiji that we will leave no stone unturned to make Kodiyal Chaturmas 2024 a memorable one. Now I would like to welcome all the devotees who have come from all over India as well as abroad to participate in this Kodiyal Chaturmas 2024. So I would like to say a few words on Vamanashram Samadhi as well as Umameshwar Temple. The venue of Vamanashram Samadhi Mutt, Ganapati Temple Road, Mangaluru, is the Samadhi of our sixth Sadguru, Paramapuja Srimad Vamanashram Swamijis, whose spiritual regain as a Dharmaguru and Moksha Guru of our Samaj, and was spiritually vibrant tenure of 16 years from 1823 till 1839. Even after their Mahasamadhi, he has been showering his anugraha to all who come to him with no more than a tender coconut, which is enough to win his abiding grace. When Paramapuja Swamiji Shankarashrama Swamiji, Matadipati of Srimad Chitrapur Mutt, accepted our invitation, graciously consented to observe their 28th Chaturmas Vratam in the Samadhi Mutt, Mangalore, we Mangaloreans consider ourselves blessed by the Srimad Vamanashram Swamiji as well as Lord Umameshwar. Adjoining Samadhi Mutt is Sri Umameshwar Temple, which was recently witnessed Punarpratishta of Parivara Devatas. This is one of the oldest shrines of our Samaj. Thus, the venue of Kodiyal Chaturmas 2024 is doubly blessed indeed. I would like to give some good news, but I thought tomorrow is the best day because I want to tell you, but I don't want to give this today because I want to show this on the Guru Purnima day. This is the best possible news for Saraswat Samaj community. So you all think what will be, but please wait for another maybe 14 hours. So I would like to give that good news to you all. Now I'm humbly requesting Paramapuja Swamiji to bless us with their divine Ashirvadacha. स्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद् धम्मिल्लसम्मल्लिकां
लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानीशङ्कराय नमः। श्रीमात्रे नमः। महादेव महादेव महादेव। अलौकिक एक अनुभव जातं असं स्पंदन प्रतिस्पंदन। हांगा मस्त कार्यक्रम जाल्ले आती चातुर्मास सुद्दां आमी हांगा संपन्न केलेलो आसा। ताजें एक स्मरण करून ह्या चातुर्मास व्रतानुष्ठान फाय आमी प्रारंभ करता ती ताजो संकल्प घेवंचो आसता। हांगा मस्त कार्यक्रम जाल्ले आती। हांगाचे भक्तवृंद अत्यंत निष्ठापूर्वक सगळे कार्यक्रमांतून भाग घेवन एक सगर्व म्हणटा ती सेवा करता ती। मागशीवेल चातुर्मास 2013 हांगा जाल्लेलें स्वाध्याय जालेलो। ताजे पूर्व विचार केल्यार ह्या स्थानाचें एक वैशिश्ट्य आसा। ताजें विवरण करचें साध्य ना। गुरू गेल ते एक शक्ती अपार महिमा ती जो प्रत्येक साधकाक आपणा जिवनांत कशी ती शक्ती अवतरीत जाल्ल्या अलौकीक कसलें एक दिल्ल्या वा ती कृतज्ञता अर्पण करची आसता। तशी कोरनुची हांवें प्रारंभ केल्यार उत्तम म्हणून आमी उल्लेख करता आसा ती प्रतिपन सांगता ती जाल्यार 9 लोकय आयल्या ती। उत्तर भारत से भी आप लोग आए हो, बहुत अच्छी बात है। तो इस क्षेत्र की महिमा के बारे में हम कुछ उल्लेख करेंगे, बाद में आपके सह सारस्वत जो हैं चित्रापुर सारस्वत वो भी आपको बताएंगे कल परसों। यहाँ पे जो समाधि है हमारे पूर्वाचार्य की है। विलक्षण महापुरुष थे, अत्यंत सौम्य सात्विक एकांत प्रिय श्री विद्या के बड़े उपासक। उस समय कुछ अलग परिस्थिति घटनाएं हुई थी। समाज में पैसे का मद होता है तो उसके सामने जो है आध्यात्मिक प्रकाश जरा क्षीण होने लगता है या उनको दिखाई नहीं देता। तो ऐसी कुछ घटनाएं घटी थी। समाधि ली, पर क्योंकि उपासना है और अत्यंत करुणामयी थे, इसीलिए अभी भी हमको उनका अनुग्रह प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे बगल में जो है मंदिर उमा महेश्वर भगवान का, वहाँ पे बहुत उपासना की थी उन्होंने। अब उनकी समाधि यहाँ पे है। तो मेरे लिए यहाँ पे कई चातुर्मास, तीन चातुर्मास हुए ना, 3 जले हैं, तीसरे 2 चातुर्मास हो चुके हैं। वैसे बड़े कार्यक्रम भी हुए हैं। तो 2013 में पिछला चातुर्मास हुआ था। अब इस बार कुछ संकल्प हुआ यहाँ पे करें। तो वामन आश्रम स्वामी जी ने जहाँ उपासना की थी, जिनकी आराधना की थी, उस मंदिर को पहले तैयार करना, जीर्णोद्धार करना, ये एक संकल्प लिया गया था। बहुत ही अच्छी तरह से वो संपन्न हुआ। हमें बहुत प्रसन्नता होती है। वैयक्तिक मेरे लिए यहाँ पे अभी हम उल्लेख कर रहे थे, चमत्कार जीवन में आते ही हैं। उसको बड़ी खुशी से, प्रसन्नता से हम स्वीकार करते हैं और फिर बड़ी विनम्रतापूर्वक आगे बढ़ते हैं। बाप रे, मेरे पुरुषार्थ से जो सिद्ध नहीं हो सकता वो एक कटाक्ष मात्र से हो रहा है, तो किस शक्ति की मैं आराधना कर रहा हूँ, वो भाव जागृत होना चाहिए। नहीं तो फिर चमत्कार यानी फिर लेके क्या।
एक घटना, अच्छी घटना और उसके बारे में दूसरों को बता के अपना ही जो है एक अहंकार बढ़ाने वाली बात होती है। पर ये जब पता चलता है कि हाँ एक शक्ति है, मार्गदर्शन कर रही है, तब वो जो आनंद आता है वो विलक्षण है। तो यहाँ पे ऐसे इस स्थान को लेके मेरे जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई थी, 2-3 का उल्लेख करूँ। 2008 में था वो विषय 1। हम प्रश्न माध्यम से कुछ चेक करते हैं यहाँ पे इस दक्षिण भारत परशुराम क्षेत्र में, तो अनिवार्य है। जैसे लॉयर की आवश्यकता रहती है, आप जाके स्वयं अपना पक्ष स्थापित नहीं करते हो कोर्ट में, या तो फिर स्टेथोस्कोप ला के अपना ही हार्ट हाँ ठीक हूँ मैं करके थोड़ी करते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वैसी कुछ प्रणालियाँ हैं, पद्धतियाँ हैं, तो उसके अनुसार दैवों का जरा परिचय करके फिर आगे बढ़ना यहाँ पे क्रम है। तो अच्छे लोग थे उस समय, अभी भी हैं, पर उस समय वो बहुत ही विलक्षण थे। तो बार बार सूचना आ रही थी कि यहाँ एक कमरा है। बाद में आप पूछिएगा वो कौन सा कमरा है, किस कमरे के बारे में बताया, कमरा कोई दिख नहीं रहा। ठीक है, वो कमरा 4 वॉल्स रहते हैं, अभी 3 तो हैं, पर वो क्षेत्र वैसे ही रखा है, शुद्ध रखा है, वहाँ पे बैठा करते थे। उस समय वो कमरा था, एक स्टोर जैसे था, भगवान का अलंकार का जो की सामग्री थी वगैरह वगैरह सब ट्रंक्स थे, 3-4 ट्रंक्स, और एक तिजोरी थी। तो बार बार ये आ रहा था कि वहाँ पे मुझे कुछ मिलने वाला है, और ये परंपरा की इच्छा है मुझे मिले। 6-7 बार लोगों को भेजा होगा, कुछ मिला नहीं। फिर एक बार वो बड़े ज़ोरों से वो प्रेरणा आई कि आज तो मिलना ही है, बोलो। हमने फिर से सूचना भेजी, देख लो। कितने बार जाना, ठीक है इतना छोटा सा कमरा है, सब छानबीन के देखा, नहीं मिल रहा है कुछ, फिर भी कह रहे हैं बाबा जी ठीक है, गए। और उस दिन उनको एक गठरी मिली और उसमें पूर्वाचार्यों के पादुकाएं थी। देखें तो अत्यंत डेसिकेटेड बनता थे, ऑलमोस्ट लाइक चारकोल, दैट ओल्ड, बहुत प्राचीन। फिर अर्वाचीन आए, विलक्षण प्रसाद। मुझे और क्या चाहिए, परंपरा का अनुग्रह वो प्राप्त हुआ, पूर्वाचार्यों के पादुका मिले, बस धन्य 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 भावना आने लगी। तो उसी समय मेरे गुरुजी के परिज्ञान आश्रम के स्वामी जी की जो पादुकाएं थीं, वो भी क्या कह सकते हैं आप, कमिशन जाली म्हजे खातीर आशिल्ली, गोतनाशिल्लें आमगेल कुटीरांत आशिल्ली, आनंद आश्रम स्वाम्यांगेल पादुक म्हणून आमी लेखतालीं, पुजेक दवरनाशिल्लीं, आसत नांव सेट्स आसत हें दवर हें आशीच म्हण, तें पण थाडलेलें। देवी शर्मा माम आशिल्लो, हांगा कूड आशिल्लें, प्रश्न घालो, हें सगळें दाखोवन दिता आनी म्हाका पावूंक मगल गुरूंगेल पादुका, नाजाल्यार देवान सुद्दां अनुग्रह येना म्हाका। थंय सूर जाता असो म्हाका टायम सुद्दां दिलेलो, 8:30 घंट्यारी थंय राती सूर केल्लें। जालें तो पर्यंत गोत नाशिल्लें सुद्दां। आमकां कोणकी सांगिल्लें स्वाम्यान पादुकान घालून घेवची नाशिल्लीं। मागीर सुधीर येल्लोर माम आशिल्लो, ताणें तें धरलें, स्वाम्या न्हू स्वाम्यांगेल पादुका, हांवें तो चक्क उलोवन प्रश्नेर पळोवया। देवी शर्मान प्रश्न घालून स्वाम्यांगेली, मागीर ताणें सांगलें, आपणी धरलें आनी ती रथोत्सव सूर केलेलो तावळी आपण वतालो, ही पादुका श्याम धरलेली सुद्दां आसा। आनी समज त्या वापर न्हू जोर वचुलेले इंटेंशन्स आसा ती तशी पादुका, सो तें प्राप्त जालें। सो अलौकिक, वहाँ से और कई चीज़ें मिलने लगी, अनुग्रह मिलने लगा, ज्ञात होने लगा। इस प्रकार का ये एक स्थल है जहाँ हम आके आराधना प्रारंभ कर रहे हैं। पिछली बार जो है हमने काफ़ी कुछ अंकुश डाले थे लोगों पे, उगड आसस की तुमकां कळ्ळें, रातीचें अत्यंत सात्विक का रांदप, रूल आम केल्या तुमी फण्ण तायलं नाका जालें घालता ती कसलें ना, दलिया करता हें तें म्हूण पापांनी सहन केलें, घर न्ही सहन केलें, आनी कल करचेशील खावचेशील काय जाल्या लापसी करू कन्सूर केलो। हांगा मस्त भोव वायट दिसतालें आमकां, म्हाका कल गो तूं यो तुमगेले स्वामी आले आनी तेन्ना राती लापसी खावयता ती म्हूण तशी कौतूक जाल्यार बरें न्ही न्हू। सो ह्या पंत आमी तशें म्हणा ती, ह्या पंत दोनी पंत ग्रँड जावंक जाय म्हणून
आणि मदेन मदेन येत आसतले लोक, प्रवीण माम तो 3 पंथी आमचेच काही तोनसे माम येत आसतलो गोमटे आमी जेमचे एक पंथा जाल्यार आमी पळयता ती रिपोर्ट्स घेता ती सो तशें एक भायर गोमटे कोन्न करया, खुशीन करया, विजृंभणेन करया जाल्यार लक्ष आंतरीक असो हें विसरून वचप तवळ हाजी सार्थकता नाजाल्यार गम्मती मेला जातले। याद रखने के लिए एक सूत्रवत ये एक श्लोक का उच्चारण हम करेंगे, मैं करता हूँ, मुझे बहुत प्रिय है। त्वदीयं सौंदर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदालोकौत्सुक्यात् अमरललनायान्ति मनसा तपोभिः दुष्प्रापामपि गिरिशसायुज्य पदवी। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य की एक स्तुति है, उन्होंने की हुई देवी की स्तुति है, उनके मुखारविंद से प्रकट हुई एक वैखरी में उनकी जो भावना है। त्वदीयम सौंदर्यम हे तुहिनगिरी कन्ये, हिमाचल की पुत्री पार्वती देवी, आपका जो सौंदर्य है उसकी कल्पना भी लोग नहीं कर सकते। कवि क्या, देवता भी आपको आपके दर्शन भले ही कर लें, उसका वर्णन वो नहीं कर सकते। इंद्र आदि देवता भी, वर्णन के अतीत है वो सौंदर्य। लौकिक में हम कुछ कह सकते हैं, इतना है, इतना पैसा है तो उसका 10 गुना उसके पास है, इतने गहने आपके पास हैं 10 गुना उसके पास है, कुछ उपमा दे के कुछ रेशोज बता सकते। आपका सौंदर्य अलौकिक है। कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः, बहुत प्रयत्न करते हैं, ऋषिवर्यों ने दर्शन किए और फिर वेद वाणी उनके मुखारविंद से प्रस्तुति पर, उसमें भगवान का वर्णन थोड़ी ना होता है, संकेत मिलते हैं बस उतना ही। और भगवान के लिए हम जाते हैं तो फिर तो ये नहीं कहते, अटक नहीं जाना, आगे बढ़ो, बस उतना ही बता सकती है श्रुति देवी। यदा लोकौत्सुक्याद अमर ललना यान्ति मनसा, पर ये देव जो हैं, अग्नि, इंद्र, वायु इत्यादि, इनकी शक्तियां हैं, उनका पार्थिव शरीर नहीं रहता है, अत्यंत सूक्ष्म शरीर रहता है, सौंदर्य भरपूर रहता है। तो उनको सुनने में आया कि ऐसी है ये एक देवी आदि शक्ति, उसका क्या बताना। तो उनके हृदय में एक इच्छा उत्पन्न हुई, देखे तो सही कौन है, परस्पर तो वो रहता ही है, और कौन मेरे से कौन सुंदर है, और ये तो कोई अलग ही कोई शक्ति है। सुनते हैं सौंदर्य की, अप्रतिम सौंदर्य वहाँ पे। तो अमर ललना याति मनसा, आलोक उत्सुक्यात, उत्सुकता उनके हृदय में आती है, हमें भी उसका दर्शन करना चाहिए। तो मार्ग क्या है, कहाँ जाना, मार्ग तो ऐसे ही बताया जाता है, ध्यान करो, जप करो वगैरह। तो वो शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ भी जब ध्यान करने लगती हैं, आलोक उत्सुक्यात, प्रेरणा क्या है, अहंकार से जा रही थी, मेरे से भी कोई सुंदर है पूछ के देखना चाहती है, पर उसी तीव्रता को अंतर्मुख ले जाने के कारण उनको दर्शन होते हैं भगवती। और वो भी कैसे, अमर ललना, अमर यानी देव, उनकी जो शक्तियाँ हैं, यान्ति मनसा तपोभिः दुष्प्राप्त, तपश्चर्या करने वाले यतियों के लिए भी जो दुष्प्राप्य है वो उनको प्राप्त होता है। गिरीश सायुज्य पदवी, शिव सायुज्याचे चलतं स वरस म्हणा मीची हाजेर विचार करू का। देवील दर्शन होता है जाता, नॉट ओनली दॅट, देवीन प्रसन्न जाल्या की म्हाका पडलें नव्हतं, धन्य तुम्ही घ्या लिटल वे चॉकलेट, इतलें वांटकाण आयलें तूं, आतां तुका म्हाका कसली अत्यंत प्रिय सांग तें देता म्हणून गिरीश सायुज्य पदवी प्रदान करता। गिरीशा सांगात, ईश्वरा सांगात ऐक्य प्रदान करता। मस्त मार्मिकच आहे।
खंयचे आमी अत्यंत एक स्थूल कॉम्पिटिटिव अर्थान तो ते काढलें अत्यंत सूक्ष्म सा देवी की हम आराधना करते हैं, हमारी इंद्रियों को लेके हम कर रहे हैं। अभी बता रहे थे, अरे रोटियां बन रही हैं, कराते सीखो, चपाती ऊपर खाती 1-2-3 दिवस बदन देता ना। तो भोजन अच्छा रहना चाहिए, जो व्यवस्था है सब अच्छी रहनी चाहिए वगैरह हम प्रयत्न करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलौकिक एक शक्ति है, गुरु परंपरा है, उसका हम एक आस्वादन लेना चाहते हैं तो हम इंद्रियों से लेंगे। मधुर गान हो, भजन हो, पूजा हो, सब कुछ हो, सब इंद्रियों से स्वीकार करने वाली बातें। पर याद रखना चाहिए करने से क्या होता है, अंतर्मुखता बढ़नी चाहिए। ओरिएंटेशन कहते हैं, किसकी खुशामद थोड़ी ना कर रहे हैं, एक उमंग से कृतज्ञतापूर्वक हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसकी ओर जब हमारा लक्ष्य जाता है, शक्ति का स्रोत इंद्रिय हैं, चक्षुर इंद्रिय हैं, घ्राणेन्द्रिय है, श्रोत्र है, इनकी अधिष्ठात्री देव हैं, तो उनकी शक्तियाँ भी प्रसन्न होती है और अंतर्मुख होने से वो भगवती की आराधना करने लगती हैं। और भगवती क्या देती है? भगवती तो शिव सायुज्य दे देती है उनको। मेरे हृदय में क्या है वो मैं तुम्हें दूंगी, और शक्ति के हृदय में शिव बैठे हैं तो शिव प्राप्ति हो जाती है। वहाँ पे अखंडता में फिर वो शक्तियाँ लीन हो जाती हैं, मुग्ध हो जाती हैं। अरे मेरा तो क्षेत्र इतना ही था, मेरा अल्प एक सामर्थ्य था और मैं उसी में इतना बस अपने को बहुत कुछ समझ रहा था, समझ रही थी। अब तो मैं स्रोत को पहुंच गई हूँ, फिर क्या रहा? उसी में निमज्जित होना। वहाँ पे कोई तारतम्य नहीं है, तारतम्य नहीं होती तो आनंद ही है आनंद। द्वितीयाद वही भयम, दुसरायल म्हणजे बदर भय, फ्रेंड ऑफ वो म्हणजे जाता फ्रेंड, मागीर फो जावन बसता। अद्वैतान तो अखंडतेन तो कसले ना, आनंद ही आनंद। शिव सायुज्य पदवी देने वाली वो परंपरागत वो शक्ति है, उसकी आराधना करने हम यहाँ पे आए हैं। बड़े प्रेम से करेंगे, तपस्या होगी, अंतर्मुखता बढ़ानी पड़ेगी। आणि करताना डोळ्याचे मी कोण बसताना पहिल्या 3 अक्षरां सण गिरगिर चलत असता, त्यामुळे शांत करता पडतले। मागीर तिगल एक प्रसाद मेळतना तुम्ही भायर केल करतात कार्य तांतूय आनी एक गोमटा येवच्या सूर जातली, सहजता येवच्या सूर जातली। तांचे एक प्रोत्साहन दिसता आनी अंतर्मुखता करूया, प्रयत्न करूया। सो तशी मागीर शिव सायुज्य प्रदान करतली, त्या शक्तीला आराधन करत सती बाहेर एक बरेपण सौंदर्य धावेन जावंका आनी आंतर एक समाधान मात नाही, समाचे सम्यक अधीयते अस्मिन्, समाचे समाधी तांतो ऐक्य जावंका म्हण आमी प्रयत्न करत असती। प्रतिवर्ष कशी चातुर्मास एक जाल्लें आपणान तुमची कितली प्रौढता आयल्या। आतां 4 वर्स जाल्लीं हांगा येवन, वय की ना? कितें फरक आसा? आसा काळें आशिल्लें जाल्यार आनीक मस्त सण आसा, एक प्रौढता आयल्या, अनुभव मस्त जाला। 4 वर्सांत अनुभव आसता, ताच्यान क्षीण जाल्या की एक ओजस्विता आयल्या की ताणें पळोवंका। उपासना नित्याक तुमी कल करता ती समज आताच मेरी डेफिनेटली यू आर एट अ मच एलिवेटेड पोजिशन, मोर मॅच्युरिटी, स्ट्रेंथ, and let it just explode now. ह्या चातुर्मासान तो ह्या चातुर्मासाचें लक्षण भोव बरें आसा। घुमटे कोण सूर जाता, कार्यक्रम बरे जाता, ती एक भोव बरें लक्षण आयल्या। परत परत आमी चेक केलें तावळी अनुग्रह। सो तुमगेली प्रथम काळजी आमगे शोभा यात्रेन पावस येनी म्हणून। आनी फायचे कल गुरुपूर्णिमा महत्व नवे पुजेचें आनी महत्व आसा। सेकंड मागीर कल गुड न्यूज दिवचे तांचे आसा। सो वील वेट इन एंटिसिपेशन। गोमटे कोण करुया, फाय संकल्प घेया ती। कसलो संकल्प? आमी प्रतिवर्ष कितले कल सांगचे आतां 28 खंय, बाप रे, ताचे पयले केले आसा। तुम्हें विचार करा थी संकल्प लेना ही होगा। यात्रा के समय कुछ दिन 1-2 दिन छूट जाए तो बात अलग, मानसिक जप तो चलते ही रहता है। पहुँचने पे फिर से शुरू करना है, तोड़ना नहीं है वो। तो जप बढ़ाने का एक संकल्प कर सकते हो 2 महीने,
पूजा करते हो तो फिर अच्छी तरह से करना, या तो फिर मंगलवार को, सोमवार को, शुक्रवार, जो भी चाहें उस दिन करेंगे पूजा, ऐसे कुछ संकल्प लिया जा सकता है। स्तोत्र पठन का संकल्प लिया जा सकता है, प्रतिनित्य ये स्तोत्र, ये स्तोत्रों का मैं पाठ करूँगा ही, इस प्रकार से संकल्प करने वाली बात, बढ़ाने वाली बात उपासना। कुछ कड़ी में थोड़ा कम करने वाली बात भी हो सकती है, सोना जरा कम, आजकल तो स्लीप डिप्रिवेशन कैन बी अ प्रॉब्लम, खाना कम थोड़ा सा वो कर सकते हैं। हाँ, देख लेना, सात्विकता बढ़ानी भोजन में, इस प्रकार से करने से वो एक तपस होने लगता है, तपश्चर्या, जिससे वो शक्ति जागृत होती है, उसको एक प्रोत्साहन मिलता है। नहीं तो सुप्त रहती है, अनुग्रह हुआ तो भी शायद पता नहीं चले, इस प्रकार से होता है। उसको अच्छी तरह से अनुभव करके उसको आत्मसात करना जीवन में, इसके लिए हमें थोड़ी तपस्या करनी रहेगी। सबसे बड़ी तपस्या रहेगी वाणी का संयम। वाणी का जब प्रयोग होता है सोच समझ के करना, उसमें एक माधुर्य लाना, स्पष्टता लाना, सत्य लाना। और अभी जो है यहाँ पे सेवा में यही देखेंगे आप लोग, रामू माम, वही ना है, दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाणी। When I ask you a question, if you know, then answer. Otherwise, say, I need time, I'll find out. Approximately naka. Because you are my ears and eyes. If you tell me the truth, okay, fine. If you mislead me, I am lost. So, तिकले का तुम गेल घेव ना तुम्ही करका, वही की ना. आज अनुभवाचं तुमका कळल्या. सो आम्ही घोमटें कोण सांगा ती मेळण करतना हें एक आंतरिक संयम दवरचो, संकल्प घेवन करूया. अलौकिक जातलें अनुभव हो तुमचे खातीर, सगळ्यां खातीर. आणि तुम्ही एक धैर्य केलेलं मी ते समाजाक ॲट लार्ज म्हणटा ती मस्त लाभ मेळचो सगळ्यांना. सो खुशीन करूया, घोमटें करूया. हांकां मागीर हिंदीन कोणाक येता घोमटें करून आमगे उत्तर भारतान कोण आयल्या ती तांकां समज परिचय करून दिया ती आज ना फाय एक देवस्थानाच्या देवालयाच्या. ऑफिशियली फायदोन सुरू जाता आज रांदपणच नव्हे. मन भावन मेरो सतगुरु नाम, गुरु चरणों में चारु धाम. मन भावन मेरो सतगुरु नाम, गुरु चरणों में चारु मिटाई विषय वासना, गुरु ने मिटाई विषय वासना, गुरु ने जगाई भक्ति भावना, गुरु ने जगाई भक्ति
गुरुनिष्काम गुरु निर्मल मेरो गुरु निष्काम गुरु चरणों में चारों धाम मन भावन मेरो सतगुरु गुरु चरणों में चारों गुरु ने सिखाई सत की साधना जप तप निष्ठा नित्योपासना गुरु ही ईश्वर गुरु ही राम गुरु ही ईश्वर गुरु परिज्ञान गुरु चरणों में चारों धाम मन भावन मेरो सतगुरु गुरु चरणों में चारों अविचल प्रीत की रीत सिखा दो गुरुवर नैया पार लगा दो लीजो मेरो कोटि प्रणाम लीजो मेरो कोटि प्रणाम गुरु चरणों में चारों धाम मन भावन मेरो सतगुरु गुरु चरणों में चारों धाम मन भावन मेरो सतगुरु गुरु चरणों में चारों नन्दन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ऑफिस बेल्साने समर्पण करू प्रेम कामून एक अनाउन्समेंट आमगल चातुर्मास कमिटी स्कोर कमिटी मेंबर्स प्लस लोकल सभे ऑफिस बेरर्स तांनी हांगा स्वाम्यांक फल समर्पण करूक येवंक म्हणून विनंती विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्त विज्ञान संन्यास योगा जतयः शुद्धसत्त्वाः
ते ब्रह्मलोके परान्तकाले सर्वे रहं विपापं परमेषु भूतं यत्पुण्डरीकं पुरमत्यसग्गस्तं तत्रापितरहं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादो स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः स्थापितं वरदस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि दीर्घतमामधेयोर्विर्वाङ्गशमे युगे अपावर्तयतीनां ब्रह्मा भवति नमः पार्वती